The topic is subject-verb agreement. Subject-verb agreement relates to the agreement between the noun and the verb. Okay, if there is a singular subject, that requires a singular verb, and if the subject is plural, that would require a plural verb. Likewise, if you can see in this example, it says great lawyers is coming. Okay, so either the word lawyers or is incorrect. Okay, but the statement that follows this particular small sentence is, will you be one of them? Okay, one of them relates that it is definitely plural. Okay, the subject is plural. Okay, so here the verb would also follow suit. The verb also has to be plural. Okay, but that is not the case in certain rules. According to certain rules, there are few exceptions and there are few changes which we are going to discuss in the following slides. So some basic rules we'll just talk about. The first and foremost is that the subject and verb must agree in number, which means, like I just mentioned, singular subject take singular verb, plural subjects take plural verb. Okay. And the example is, Mr. Batan is the jolliest man I know. The children sing with pride and confidence. Mr. Batan, because this relates to a singular subject. The children, because children is a collective noun, and with collective noun again we use singular verb. याद रखना, children आ गया, ठीक है, family आ गया word, ठीक है, बटान फैमिली होता यहाँ पे, या कोई और ऐसा कलेक्टिव नाउन आता, तब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगा. Some more examples. Vince is or are the best news writer in his grade. So it is one name, it's Vince. The players having a hard time choosing a team. Players. So यहाँ पे are आएगा, plural आएगा. Okay. Then a compound subject joined by and is generally plural and requires a plural verb. Compound subject, as you have read the compound sentences. Compound sentences means those which have the use of coordinating conjunctions. Okay, coordinating conjunction में एक सबसे famous होती है and, जो दो बातों को, दो अलग-अलग बातों को join करती है. ठीक है, अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट ही हमारा कंपाउंड है और वो एंड से जुड़ा हुआ है और वो प्लूरल भी है, तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी. जैसे कि सैन एंटोनियो स्पर्स एंड न्यू जर्सी. ओके, क्यों? क्योंकि ये दो हैं और कंपाउंड है हमारा सब्जेक्ट. ओके, व्हाई? दोनों टीम्स की बात हो रही है यहाँ पे. Likewise, Richmond and Russell often argue with each other. Okay? अब यहाँ क्या है, दो persons हैं जो कि and से जुड़े हुए हैं. Okay? तो हम यहाँ पे singular verb का use कर रहे हैं. Okay? Few more examples. Game of Thrones and also more are our favorite television shows because these are talking about two separate things. Michael and Christian always eat, okay, together during recess and lunch. Okay, so यहाँ पे हम singular use कर रहे हैं क्योंकि Michael and Christian किससे relate कर रहे हैं? Always act जो है वो same है, ठीक है, और अलग-अलग हैं जिनको जोड़ा हुआ है, दो persons हैं. Okay, so singular यहाँ पे हमारा verb use होगा, whereas जब ये team के तौर पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे plural जो है वो use होगा. Okay, I hope this one is, I hope I am clear up till here. So the next part is, if two parts of a compound subject refer to a single person or thing or form a single unit, the compound subject is considered singular. So क्या है, दो पार्ट्स है अगर किसी कंपाउंड सब्जेक्ट के, वो एक ही पर्सन या एक ही चीज की बात कर रहे हैं या खुद ही एक ही सिंगल यूनिट फॉर्म करते हैं, तो जो सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर माना जाएगा, और जब उसे सिंगुलर माना जाएगा उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब यूज होगी. जैसे कि ham and egg is a popular combination. Remember we talked about bread and butter.
ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर हुआ क्योंकि वो एक से है, एक ही चीज को रेफर कर रहा है, तो वो पूरा सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए वो अलग अलग नहीं होगा, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। यहाँ पे हम इसे सिंगुलर मानेंगे, एक ही मानेंगे। द मैनेजर एंड ओनर ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, क्योंकि बात क्या हो रही है, प्रेजेंस की बात हो रही है, दोनों ही प्रेजेंट है तो हम इज लगा देंगे, आर नहीं लगाएंगे। आ गया, bread and butter is our daily food. The famous singer and composer has arrived at the concert venue. Okay, a similar example, a similar sentence is given on page 53 in your book, which says, the fourth sentence says the singer and actor Sonu was awarded the trophy, because both the things refer to the same person. Okay, the singer and the actor dash wearing similar jackets. वर या वॉज आएगा। ठीक है, सिंगर और एक्टर ने एक जैसी जैकेट्स पहन रखी थी, यानी कि वो सिंगर और वो एक्टर दो अलग अलग पर्सन्स हैं, सो वी विल यूज वर हियर। ओके, आई होप दिस मच इज proceeding ahead. The next is singular subjects joined by or not. Take a singular verb. Okay, when a singular subject and a plural subject are joined by either or, neither nor, the verb agrees with the nearer subject. ठीक है, क्या होगा जब हमने either or लिया है, neither nor लिया है, इसके बाद जहां हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके साथ जो सब्जेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला है उसके अकॉर्डिंग आएगी, या हम दोनों को कंसिडर करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, नियरर सब्जेक्ट, जो क्लोजर है उसके अकॉर्डिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ईदर माय फादर और माय ब्रदर्स डैश गोइंग टू मीट द बायर। ओके, अब यहाँ ये ब्रदर्स है तो आर आया, और अगर हमने इसी सेंटेंस को चेंज कर दिया, मैंने माय ब्रदर्स पहले किया और माय फादर बाद में लिखा, तो हम ये फॉलोइंग जो हमारा और के साथ नीदर नॉर है या इधर और है, जो सेकंड वाला हमारा वर्ब होगा, इसके साथ हमने यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर गोइंग टू बी अबाउट 12 पॉइंट्स लाइक दिस व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड, and these remain same throughout. If you are speaking in English, if you are writing something in it, you just need to relate to this. Okay, likewise neither Naomi nor Chris was hurt because same है। अब ये मैंने क्रिस और नॉमी को इंटरचेंज किया तो भी सेम है, क्यों? क्योंकि ये नेम्स ही हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। Then there are few more examples, either my mother or my father. Okay, या तो ये या तो वो, दोनों ही सिंगुलर हैं तो इज आ रहा है। ठीक है, अब अगेन neither Megan nor my sisters, जैसे ही आया sisters आ गया तो वर लग गया। Okay, I hope the third point is clear now. The fourth one says collective nouns take a singular or a plural verb depending on whether the group is thought of as a whole or as individuals. अब एक चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब तब लेती हैं जब डिपेंड करता है कि वो जो थॉट आ रहा है उसमें उसको इकट्ठा करके ले रही हैं, यानी कि वो कलेक्टेड थॉट है, या फिर वो डिस्पर्स थॉट है, वो अलग अलग विचारों से आ रहा है, या ओपिनियन डिवाइडेड है। कई जगहों पे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां ओपिनियन डिवाइडेड है, आपस में किसी का जो है आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या कहीं पे इकट्ठा वो बात अलग अलग चीजों की कर रहा है, पर नाउन्स कलेक्टिव यूज हो रही है, तो हमारा वर्ब भी चेंज हो जाएगा। और अगर एक ही बारे में बात कर रहा है, कलेक्टिव नाउन है, तो हमारा नाउन डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। जब इन्हें एज अ यूनिट, एज अ होल हम मानते हैं, एक ही चीज मानते हैं, ठीक है, एक ही बात होगी, तो क्या दिया है, द टीम इज गोइंग टू मिंडानाओ टू एडमिनिस्टर अ स्पोर्ट्स सेमिनार। टीम कलेक्टिवली एक ही काम कर रही है यहाँ पे इस सेंटेंस में कि वो जा रही है, तो टीम इज हो गई। वैसे ही द बटालियन हैज बीन मार्चिंग फॉर पीस एंड यूनिटी,
तो ये जो काम है दोनों, ये सारे पूरी बटालियन कर रही है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ठीक है। टीम जो है वो एक प्लेस है मिंजनाओ, वहां जा रही है टू एडमिनिस्टर हो पाए एक स्पोर्ट्स सेमिनार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे। और बटालियन जो है, कोई आर्मी की बटालियन है प्रोबेबली, वो मार्च कर रही है पीस और यूनिटी के लिए, तो ये भी एक ही काम कर रही है, यानी कि उनका मत एक ही है, पर्पस एक ही है, रिजल्ट एक ही है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। और जब यहाँ पे उनका ओपिनियन डिवाइड हो गया, तब हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप इसमें सेकेंड सेंटेंस में देखोगे, पहले में क्या है, द टीम इज हेडिंग टू द जिम फॉर प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून। टीम एक ही काम करने जा रही है, जिम जाएगी इस आफ्टरनून में। और स्टाफ मीट्स ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग्स टू डिस्कस कस्टमर कंप्लेंट्स। नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डिस्कस? कस्टमर कंप्लेंट्स, व्हिच इज अ प्लूरल टर्म, ओके। प्लूरल हो सिंगुलर हो वो बात अलग है, पर क्या होगा यहाँ पे, रिजल्ट क्या होना है कि कस्टमर कंप्लेंट एक ही तो नहीं होगी, अलग अलग चीजें होंगी, तो वो एज अ होल एक यूनिट नहीं बनता। एक ही काम चाहे एक ही हो, उसके अंदर डिविजन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो हम प्लूरल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन सेंटेंस हियर टू कोट एज एन एग्जाम्पल इज द committee were divided on the issue, ठीक है। were क्योंकि उनका मत सेम नहीं था, ठीक है। सो अगर वो एज अ होल है, कलेक्टिव नाउन है और एक ही मत है, उसका एक ही पर्पस के लिए काम कर रही है, तो सिंगुलर। और अगर नहीं कर रही है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। As you can see, when regarded as individuals, the collective noun is plural. The family are arguing about the upcoming elections. अब जो फैमिली है उसी में आर्ग्यूमेंट है, यानी कि उनका मत डिवाइडेड है, उनके विचार डिफरेंट हैं, ठीक है। The members of the class are working hard on their projects. Are working hard क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगेन द प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट। प्रोजेक्ट तो वो कर रहे हैं, बट सबके प्रोजेक्ट अलग अलग है, एक प्रोजेक्ट नहीं है किसी का, ठीक है। So that's how it is different. Example, you can see the audience are listening to the speaker of the seminar. Now you can see you are my audience, you are my students are listening to me, okay, क्योंकि आप एक ही काम कर रहे हैं, कलेक्टिव हैं। ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था, the members of the committee were disagreeing with one another about the project proposal. They were again divided. Okay, so this is all major about subject verb agreement with few examples. All this is there in your book. All the things are based on this only. Then apart from this, there is one thing which is not mentioned here in this slideshow, is that you need to use a singular verb, singular helping verb, when you have undefined subject, okay, when your subject is not defined, somebody, someone, anyone, okay, जब इस तरह का everybody, वो हमें नहीं पता कौन कौन, ठीक है। सो हम सिंगुलर ही यूज करेंगे वहां पे हेल्पिंग वर्ब। ये एक और फैक्टर है which I forgot to take in this presentation, okay. So this is majorly about subject verb agreement. All the major factors that are required to be covered are there in this one. Still, if there are any doubts, you can ask me.